Okay, write down next heading. Experimental study experimental study of photoelectric effect. Experimental study of photoelectric effect. What is the setups and how uh, the experiment is done? We will study. Okay, write down some points. यहाँ पे लिख लो. First of all, draw the figure. Figure. This is the vacuum tube. Like that. Here it is the sun. Okay. Light will pass here, and this is the plate. This plate, and this is another plate. This plate is named C. This plate is named A. Okay. When the light will fall on the plate, the electron will eject. Some electrons will eject and move here in that direction. Electrons. These are the electrons. These are the electrons. Electron will move here. This is the collector because electron will be collected by this. Okay. This is positive plate, you can say. This is positive plate. This is negative plate. Electron will be attracted toward positive plate. Okay. This is the tube. Uh, this is photosensitive plate. This plate is photosensitive. Photosensitive plate. Draw the figure. Photosensitive plate. Here you can attach an micrometer in series. Micrometer, and here you can attach voltmeter. You can attach voltmeter. Okay. Here you can key. Okay. This is the experimental setup. First draw the figure. Now after that we will discuss. I think audio and video both are clear. Draw the figure fast. This is the experimental setup of photoelectric effect. Experimental setup.
ओके डन, बाकी लोग भी कर लें फटाफट। ओके, राइट डाउन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे हम। राइट डाउन नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट effect of intensity of light on photoelectric current, on photoelectric current। photoelectric current, इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of, is proportional to the intensity of incident radiation, proportional to the intensity of incident radiation। क्या मतलब हुआ, देखना यहाँ पे कि जब यहाँ पे लाइट फॉल करती है फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम द प्लेट एंड इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे जितने फोटोन फॉल कर रहे होंगे, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। हाँ, जितनी ज्यादा इसमें लाइट आएगी, ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें उतने ज्यादा फोटोन होंगे, और जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतना ही ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ऐसा माना जाता है कि एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज में, आइंस्टाइन के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो होने का मतलब इसमें करंट है। इसलिए बोला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे एक ग्राफ बना लेना है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये ग्राफ होगा, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे आएगा फोटो करंट, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट की बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल या इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल यू कैन से।
effect of potential. Effect of potential. First write down photoelectric current increases with the increase. Photoelectric current increases. Photoelectric current increases with the increase in accelerating potential. Increase with the increase in accelerating potential till a stage is reached. Till a spray is till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum. When the photoelectric current becomes maximum. सारी बातें बता रहा हूँ अभी. When the photoelectric current becomes maximum and does not increase further. And does not increase further. And does not increase further. And does not increase further with the increase in the accelerating potential. With the increase in the accelerating potential. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो लाइट फॉल कर रही है, लेट अस सपोज ये इंटेंसिटी कांस्टेंट है. इंटेंसिटी कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहा है. ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है. सारे इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाए. जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो पहुंच सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया जाए तो ये इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है. मतलब सॉरी, पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए तो ये जिसके पास कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम एनर्जी थी वो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है. जब इसका पोटेंशियल बहुत कम था, पॉजिटिव था लेकिन कम था या जीरो था, तो बहुत कम इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे. लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज कर दे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ज़्यादा इस पर अट्रैक्ट होते चले जाए. तो जैसे जैसे हम इसकी प्लेट की पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो इस पर फॉल कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कांस्टेंट है, बट यहाँ पे रीच नहीं कर पा रहे थे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने से सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पर सेकेंड उसमें फॉल करने वाले इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब करंट इंक्रीज होती चली जाएगी. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट हो रहे थे वो सब के सब यहाँ पे पहुंच जाते हैं. उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही होगी यानी फोटो करंट, दैट विल बी मैक्सिमम. ओके. अब उसके बाद हम पोटेंशियल को और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब तो पहुंच जा रहे हैं, बचा कुछ भी नहीं. इसलिए इसके पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करने से इसमें फोटो करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा. कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा इसका मतलब बोलेंगे कि जो करंट है वो कांस्टेंट हो गए. फिर से बताता हूँ एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड जो है कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी कांस्टेंट है, बट सारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पहुँच पाए. इसकी पॉजिटिविटी स्टार्टिंग में कम थी, कम इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया जाए यानी इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाए. पोटेंशियल इंक्रीज करने में क्या होगा, पॉजिटिव में ही हम इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव में ही इंक्रीज करते तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचने लगेंगे. यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे वो सब के सब पहुंच गए. उस टाइम पे जो करंट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है जिसको हम फोटो करंट कहते हैं, फोटो करंट विल बी मैक्सिमम. अगर फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद हम इसकी पॉजिटिविटी यानी पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं
तो क्या होगा, अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इसलिए करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और वो करंट जो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, और उसी करंट को हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिख लो, दिस मैक्सिमम सॉरी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट the maximum value of photoelectric current is called saturation current, is called saturation current. The maximum value of photoelectric current is called saturation current. देखो, जब इस पे कोई भी हमने पोटेंशियल नहीं लगाया था, तो इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, मतलब कुछ इसमें करंट रही है। इसमें मैं करंट बताता हूँ, इसमें मैं पोटेंशियल को बताता हूँ V पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, यानी एनोड की बात कर रहा है ना। तो कुछ करंट रही होगी, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होती है। एक टाइम ऐसा है कि हम पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं, जैसे बढ़ा रहे नो मैटर, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। दैट करंट इज सैचुरेशन करंट, आई नॉट। देख लेना इसको, यहाँ कुछ करंट होगी जब पोटेंशियल हमने कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन हो ही रहा है, कुछ करंट तो होगी होगी। यस क्लियर, यहाँ तक बताओ। ये है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। जब यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉजिटिव हो तो इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जीरो था, जीरो पोटेंशियल, कुछ भी नहीं, जित कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कोलाइड हो रहे थे, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे थे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले वो यहाँ पे फॉल कर रहे थे, कुछ करंट हमको मिल रही थी, यानी कि जीरो पोटेंशियल अप्लाई करने पे भी हमको कुछ करंट मिल रही थी। पॉजिटिव में इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हमने +2 वोल्ट लगाया, तो कुछ और इलेक्ट्रॉन जो पहले से फॉल कर रहे थे वो तो आएंगे आएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तो आएंगे आएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन जिसके पास थोड़ी सी कम एनर्जी थी वो भी इसमें फॉल करने लगे। तो इसको बढ़ा के हम +4 वोल्ट कर दिए, तो जिसके पास और कम एनर्जी थी वो भी इसमें फॉल करने लगे। इसी तरह से हम पॉजिटिविटी को बढ़ाते गए, पॉजिटिविटी को बढ़ाते गए, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए, +4 +8 +9 +10 से इंक्रीज करते गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्योंकि फॉल कर चुके हैं, अब इसमें पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स हैं फॉलिंग पर सेकंड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो कुछ और हो जाता। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे देखना है कि ये कांस्टेंट है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम जो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहे थे, अब हम -1 वोल्ट है, -1 वोल्ट। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले जीरो पे हम ले लेते हैं, जीरो पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव किया, अब रिपल्शन स्टार्ट हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेल भी हो जाएंगे। फिर हम नेगेटिविटी को और बढ़ा दिए, 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 तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फिर कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर जाए। जिसके पास कम एनर्जी थी वो पहले स्टॉप हो जाए, जिसके पास और ज्यादा एनर्जी थी वो थोड़ा बाद में स्टॉप होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके बराबर अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें,
उसके बराबर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है उसको भी स्टॉप कर दें, तो उससे कम एनर्जी वाला स्टॉप ऑलरेडी हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने में हम सक्सेस हो गए, तो जो उससे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो तो अपने आप रुक जाएंगे, है ना। तो ये बोल रहा है कि हम इसका एक इतना पोटेंशियल दे दें, वो भी नेगेटिव में इसका इतना पोटेंशियल दे दें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फॉलिंग कर रहा है उस पर वो अगर स्टॉप हो जाता है तो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो फोटो करंट है वो 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये यहाँ पे आके एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसको हम वी नॉट कहते हैं या माइनस वी नॉट कह लो, या वी नॉट, या इसको हम माइनस वी नॉट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। वी नॉट होता है एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। राइट डाउन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि के मैक्स, के मैक्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू, kinetic energy max will be equals to 1 by 2 m v max square, v max square means mass of electron and velocity of electron, v max square। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी ये आती है Q इंटू वी या E इंटू वी नॉट, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी होगी होता है ना W, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, और यही W वर्कडन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी ही हमारा यहाँ पे है E इंटू वी, ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये होगा हमारा V क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी जब हमारा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे ये स्टॉप हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0। ओके, होप इट इज क्लियर। क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से अगर हम इंक्रीज कर ले कुछ नहीं होगा, स्टॉप तो कर ही गई, नो प्रॉब्लम। जिससे हम पॉजिटिविटी को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब सेचुरेशन करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेचुरेशन करंट को अटेंड कर चुका है, यानी मैक्सिमम करंट को अटेंड कर चुका है, अब उससे ज़्यादा है उसमें करंट नहीं हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बढ़ा दो, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम करने से कोई मतलब नहीं निकलता है ना। ओके, होप यू ऑल इट इज क्लियर। इसको लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, लिख लो आराम से, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अगर देखते हैं उसी ग्राफ में थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। ये ग्राफ जो हमारा था वो इस तरह से था, है ना, इस तरह से था, ये आई था और ये हमारा
वाला प्लस भी था और ये माइनस भी था। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना तुमने। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी नॉट एनर्जी, एनर्जी को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होने वाला है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? क्यों? 100 जूल का आ रहा है, यहाँ पे 10 जूल एब्सॉर्ब हो गई एज द वर्क फंक्शन, एज द वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, दैट विल हैव काइनेटिक एनर्जी 90 जूल। फॉर एग्जांपल 100 जूल आया, 10 जूल एब्सॉर्ब हो गया, 90 जूल निकल गया। लेकिन अगर 200 वाली एनर्जी आएगी तो क्या होगा? तब भी तो ये उसका वर्क फंक्शन तो फिक्स है। वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, वर्क फंक्शन इज फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे 10 ही तो लेगा, बचेगा कितना? 190। मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स है, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अगर लेकिन इंटेंसिटी में बढ़ा रहे हैं, एनर्जी में कोई टेंशन नहीं, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन में इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन में इंक्रीमेंट हो रहा है, एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में भी इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन जब इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन स्टॉप पोटेंशियल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी अभी भी वही होगी, क्योंकि हमने एनर्जी को नहीं बढ़ाया, एनर्जी को हमने नहीं बढ़ाया। बस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा होगा उसकी भी जो एनर्जी होगी वही होगी जो पहले थी। हाँ, नंबर ऑफ करंट जो कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि इसमें करंट में इंक्रीमेंट होगा। मींस सेम पोटेंशियल अगर जीरो होगी तो इसे करंट में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना, और ये उसकी सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा वही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है अभी भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम I1, यहाँ पे लिखेंगे I2। I2 इंटेंसिटी ऑफ I2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 1। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। बना लो इसको। यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट नीचे। सेम वन मिनट, सेम सेम रेडियंट एनर्जी H है, different intensities means number of photons, number of photons per second, number of photons per second, number of photons per second. Video is clear, not blur. Yes, stopping potential is independent of intensity. इंटेंसिटी का मतलब हमने एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं किया, एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी कोई चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि हमने जो 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 फोटोन फॉल कर रहा था उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया, उसकी एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं किया। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे उनमें उनकी काइनेटिक जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनमें भी कोई चेंजमेंट
नहीं आएगा, अगर उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसमें कोई हमको उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इंटेंसिटी को बढ़ा देने से, इंटेंसिटी को बढ़ा देने से मीन्स नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर देने से, नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर देने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, जिससे फोटो करंट इंक्रीज कर जाता है, फोटो करंट इंक्रीज कर जाती है। मुझे लगता है आपकी बातें क्लियर हो रही होंगी। Write down third point. Done? Everyone? Okay. Now, third point, that is effect of frequency. Effect of frequency, comma, wavelength, comma, and or energy, or लिखो or radiant energy या r energy h nu or energy on stopping potential. On stopping potential. देखना, यहाँ पे हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। इंटेंसिटी इज कांस्टेंट बट एनर्जी इज वेरिंग, intensity is constant, okay, intensity is constant and energy is varying। energy अगर यहाँ पे वैरी करेगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब हम इंसिडेंट एनर्जी है इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखना, इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो निकल रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट होगी, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही फोटोन फॉल कर रहे हैं हर केस में, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे इन एवरी केस, तो फोटो मैक्सिमम करंट जो होगी वो सेम हो जाएगी। बट चूंकि अगर हम एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगी। ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगी। तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। V01, V02, V0
3। माइनस लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, कोई मतलब नहीं है उसका कुछ खास। बस ये ध्यान रखना कि जो सेचुरेशन करंट है, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है, maximum I naught will be same for all because intensity is constant. Hmm, यहाँ पे लिखना न्यू 3, न्यू 2, यहाँ पे लिखना न्यू 1। न्यू 3 सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, हम जानते हैं। यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेना, E इज इक्व टू एच न्यू। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। V3, न्यू 2, न्यू 1। सबसे कम न्यू 1 होगी, क्योंकि इसको स्टॉप करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि जो रेडिएंट एनर्जी थी वो कम थी। मैक्सिमम एनर्जी तो होगी, बिल्कुल होगी। मैक्सिमम एनर्जी को ही स्टॉप करने के तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन में नहीं समझा। यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी, इसीलिए मैं एक चीज को बार बार 10 बार बोल के आगे बढ़ता हूँ। चलो लिख लो, पहले बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। बता देता हूँ, पहले नोट कर लो। डन। ओके, देखना यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्पल देखना। यहाँ पे मान लो पहले पहले यहाँ पे 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही थी। 100 जूल ये कन्वर्ट हो रही थी इसमें, 10 जूल इसको ले रहा था ये। अब बच रही थी कितनी, 90। यानी कि जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम 90 जूल लेके निकल रहा। अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, 200 कर दिया। जो एनर्जी फॉल कर रही है उसको हमने 200 कर दिया। तो अभी भी ये 10 ही लेगा, बचे कितना, 190। क्योंकि वर्क फंक्शन इज फिक्स ना, चाहे एनर्जी से मतलब नहीं है। वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो वर्क फंक्शन हमेशा उतना ही रहेगा। अब बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे जो लाइट गिर रही थी, फॉल कर रही थी, उसकी एनर्जी में हमने इंक्रीमेंट किया। वर्क फंक्शन तो वही रहा, लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे उनमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज कर दी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसका पोटेंशियल में तो इंक्रीज करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। आप समझ में आया? इस सिंपल है एकदम, कोई बहुत ज़्यादा इसको हम समझना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाना है। बहुत ही सिंपल है, बस स्टोरी आपको पता होना चाहिए। इसमें कभी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है अगर आपने सारी स्टोरी को समझा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। बस और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। बस इतना ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे लिखना सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन से, कंफर्म हो जाएगा। सेम इंटेंसिटीज बट डिफरेंट रेडिएंट एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी अलग है, इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी, डिफरेंट रेडिएंट एनर्जी।
गॉट इट? यहाँ पे देखो नीचे वाला अगर कट गया होगा तो लिख लेना, सेम इंटेंसिटीज बट डिफरेंट रेडियंट एनर्जी। अलग अलग रेडियंट एनर्जी के लिए, अलग अलग रेडियंट एनर्जी के लिए, बट सेम इंटेंसिटी। ये वाला ग्राफ बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दोनों ग्राफ, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी, क्या नाम है, आइंस्टाइन के इक्वेशंस की, कि आइंस्टाइन ने क्या बोला है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है आज, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, यस।